Okay. Good evening, all of you, respected President Sir, Director Sir, all my faculty members and all my students. So today we are here for the webinar and we are going to webinar, this topic is medicinal chemistry, and in we took very first unit in which biotransformation or the metabolism reactions are there. So we'll start one by one, and two students are there. Shashikesh Shukla will explain phase 1 reactions, and after that Shweta, she'll explain phase 2 reactions. And I'll invite Director Sir to please tell few words to students. Good afternoon. Good afternoon to everyone. Today, this is your second webinar, BPharm second year, and your topic is biotransformation in chemistry. So I think it will be highly beneficial for all of you. Just listen the webinar carefully and take maximum advantage out of it. For your information, one of your distinguished alumni, Mr. Jatan Sharma, probably he is also in the webinar. He will join it. We have invited him, and we will also be waiting for his comments. So all the best. Alka, start करें. Okay, sir. So Shashikesh, are you ready? Should we start? Yes, ma'am. Now we will look about importance of biotransformation. Biotransformation is a vital survival because it transforms absorbed nutrient into substance required for normal body function. For some pharmaceutical, it is a metabolite that is therapeutic and not absorbed drug. For example, phenobenzamine, a drug given to relieve hypertension, cause pheochromocytoma, a kind of tumor, is a biotransformed into a metabolite, which is the active agent. Second, biotransformation also serves as an important defense mechanism since toxic xenobiotics and body waste are converted into less harmful substances that can be easily excreted from the body. Third, toxicants that are lipophilic, non-polar, and of low molecular weight are readily absorbed through the cell membrane. Cell membrane of the skin, GI tract, and lungs. These chemicals and physical properties control the distribution of a chemical throughout the body and its penetration into tissue cell. Lipophilic toxicants are hard for the body to eliminate and can accumulate to hazardous level. However, most lipophilic toxicants can be transformed into hydrophilic metabolites that are less likely to pass through membrane of critical cell. Hydrophilic chemicals are easier for the body to eliminate than lipophilic substance. Now we will look some enzymes. We will look about some enzymes. Okay, Enzymes Kunal, are the. I think general portion is okay. I think because phase first and phase second reactions are also there, huh? So now, Priyanshu, your signal is okay? Director, sir, all the faculty members and is present here. I am Priyanshu Pathak, and now I am going further continue the phases reaction of biotransformation. First of all, we have to know that what is means by phase. Here, phase is the time period during which time the drug travel from the mouth to the action of site where the drug has to see its. So let's start. In phase 1 reaction, we also called it the non-synthetic degradation reaction or catabolic reaction. In phase 1 reaction, new group is introduced to metabolite. Means in phase 1 reaction, we will introduce new group in the metabolite. In phase 1 reaction, the drug is converted to more polar metabolite. Means before phase 1 reaction, the drug will or be non-soluble in, but after the phase 1 reaction means addition of new group, it will be more polar. Fourth one, the product are more chemically reactive and sometimes more toxic or carcinogenic than parent drug. If the drug undergo phase 1
the drug become more toxic or it can cause to parent drug. Example is hepatotoxicity of paracetamol. That is change in the way phase 1 so that it can enter in phase 2. मेटाबॉलिज्म क्यों होता है? हम जो भी ड्रग लेते हैं उसको बॉडी से बाहर कैसे निकालना है, उसी को चेक उसके लिए मेटाबॉलिज्म होना बहुत ही जरूरी होता है। तो फेज 1 में क्या होता है, जो भी ड्रग हमारे बॉडी में होता है उसकी हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिस वजह से वो यूरिन के थ्रू या अदर के स्वेट के फॉर्म में, स्टूल्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाए। इसमें क्या होता है, जो भी ड्रग होता है उसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप को हम या तो ऐड करते हैं, और पहले से अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम डीमास्क करते हैं या अनमास्क्ड करते हैं। अब जो फेज 1 रिएक्शन है उसको हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी भी अदर पार्ट, अदर कंपोनेंट की या कंपाउंड की सिंथेसिस नहीं होती है, इसमें खाली फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस होते हैं, जिससे कि मेटाबोलाइट को मोर पोलर बनाया जाता है, जिसके बाद वो बॉडी से बाहर हो जाता है। फेज 1 में मेन 2 रिएक्शन होती हैं। जो ड्रग की स्टेबिलिटी है उसको हम कम करते हैं और उसको कॉन्जुगेशन के लिए फैसिलिटेट करते हैं। मतलब फेज 2 में कॉन्जुगेशन होता है, तो कॉन्जुगेशन को हम फैसिलिटेट करते हैं। अब आते हैं केमिकल पाथवे पे। अब आते हैं केमिकल पाथवे पे। केमिकल पाथवे बेसिकली 5 होते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है हाइड्रोलिसिस, चौथा है साइक्लाइजेशन, फिर डीसाइक्लाइजेशन है। अब इसमें पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, इसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत ही कॉमन होता है मेटाबॉलिज्म में। ये क्या होता है, जो जीनोबायोटिक्स होता है, मतलब मेडिसिन जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं बॉडी से, उसमें हम OH ग्रुप को ऐड करेंगे। OH ग्रुप ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन करते हैं हम एरोमेटिक रिंग का, ओलिफिन्स का, एलिफैटिक का, एलिसाइक्लिक का, बेंजिल कार्बन एटम, सबका हम इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है हमारा एसिटानिलाइड का। एसिटानिलाइड में अगर हम OH ग्रुप लगा रहे हैं, मतलब हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एसिटानिलाइड में OH ग्रुप ऐड हुआ है पहले एग्जाम्पल में, तो पैरासीटामोल बना है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हुआ है, जो कि बॉडी के लिए कम हार्मफुल है एज कंपेयर टू एसिटानिलाइड। सेकेंड एग्जाम्पल है डाइज़ेपैम। अगर हम डाइज़ापैम को बॉडी में लेते हैं तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए उसका हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं, मतलब उसमें OH ग्रुप अटैच कराते हैं, जिससे कि 3 हाइड्रोक्सी डायज़ेपैम बनता है, जिसको ऑक्साज़ेपैम भी कहते हैं हम। इसमें क्या होता है, डाइज़ापैम में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं जो कि मेटा पोजीशन पे ऐड होता है, और 3 हाइड्रोक्सी डायज़ेपैम का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ हेट्रोएटम, मतलब अगर कोई ड्रग ऐसा है जिसमें हेट्रोएटम प्रेजेंट है तो उनका भी ऑक्सीडेशन हम करते हैं। जैसे हेट्रोएटम क्या होता है, हेट्रोएटम ऐसे जिसे किसी रिंग में कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जुड़े हुए हैं, तो इनको हम हेट्रोएटम बोलते हैं। अब हेट्रोएटम का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके 2 पाथवे हैं। पहला है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द हेट्रोएटम। उस कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं जो कि हेट्रोएटम से अटैच है। इसके और दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ हेट्रोकार्बन, हेट्रोएटम। इसमें क्या होता है, हेट्रोएटम का ही हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बन एटम के 3 मेथड हैं। डी एल्काइलेशन है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, डी सल्फोनेशन है। अब आते हैं हम डी एल्काइलेशन क्या होता है। एल्काइलेशन मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में एल्किल ग्रुप का ऐड करना, तो डी एल्काइलेशन का मतलब होता है उसको रिमूव करना। मतलब अगर हम किसी कंपाउंड इसके फॉर्मूला में, कंपाउंड में एक CH3 ग्रुप है जिसको हम निकाल देते हैं बाहर, तो एम्फीटामिन बनता है, और फॉर्मिक
फॉर्मल्डिहाइड बनता है HCHO। जो मेथाम्फेटामिन होता है इसके कंपैरिजन में जो एम्फेटामिन बना है वो कम टॉक्सिक है बॉडी के लिए और इजिली बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पेज पे। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का क्या मतलब होता है पहले इसको हम समझेंगे। डीएमिनेशन मतलब अमोनिया ग्रुप को बाहर निकलना। अमोनिया ग्रुप कौन सा होता है? NH2 ग्रुप या NH3 ग्रुप, इसको हम अमोनिक ग्रुप बोलते हैं। इसका अगर किसी भी कंपाउंड से बाहर जाता है तो उसे हम डीएमिनेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है और अमोनिया बाहर निकल रहा है। मतलब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन को एक साथ कहने का मतलब यह है कि इसमें कंपाउंड को ऑक्सीडेशन भी होगा और अमोनिक ग्रुप जो होगा NH3 ग्रुप वो बाहर निकलेगा कंपाउंड से। अब इसमें एक एग्जांपल है जिसमें लास्ट का जो NH2 ग्रुप है एमाइन ग्रुप वो बाहर निकल जाता है और हमें फेनिल एसीटोन ऑब्टेन होता है जो कि जो कि 2 फेनिल मेथिल एमीन से कम टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। अब इसमें है ऑक्साइड फॉर्मेशन, थर्ड पॉइंट, जिससे इसका एग्जांपल है डाईमेथिल एनिलीन। डाईमेथिल एनिलीन जो होता है इसका हम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन के अंदर ही आता है, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं हम। इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ऑक्सीजन को हम ऐड कर देते हैं जिससे डाईमेथाइल एनिलीन से यन ऑक्साइड मेटाबोलाइट बनता है जो कि बॉडी के लिए कम टॉक्सिक होता है। अब आते हैं हाइड्रोक्सिलेशन कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैच करना। अब इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं तो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो यन हाइड्रोक्सी मेटाबोलाइट बनता है जो कि एज कंपेयर टू पैरासीटामोल कम टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए और इजिली यूरिन के थ्रू, स्टूल्स के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट जो कि था रिडक्शन, कि रिडक्शन से हम कैसे भी किसी ड्रग को मतलब स्टेबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले यह जानना होगा कि रिडक्शन क्या होता है। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, या ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में क्या होता है, इसका रिडक्शन कराते हैं मतलब हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो मिथाइल फेनाइल कार्बिनॉल बनता है जो कि एसिटोफिनोन के कंपेयर में कम टॉक्सिक है बॉडी के लिए और इजिली रिमूव हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को समझना बहुत ही इजी है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर हम किसी कंपाउंड को लिसिस मतलब तोड़ रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं तो इसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और कोलिन अलग हो जाता है। इसमें मतलब जो एस्टर बॉन्ड वाले ड्रग होते हैं RCOOR- वाले, उनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कम टॉक्सिक वाले मेटाबोलाइट बनेंगे जो बॉडी से इजिली रिमूव हो जाएंगे। अब हमारा है साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिनका साइक्लिक फॉर्म या अनसाइक्लिक फॉर्म ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी पोटेंसी ज्यादा होती है। जैसे कोई ऐसे कंपाउंड है जिसकी साइक्लिक फॉर्म ज्यादा एक्टिव है, उसका हम साइक्लिक फॉर्म से चेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका डीसाइक्लाइजेशन हो जाएगा और अब वो बॉडी से इजिली रिमूव हो जाएगा। मैम हो गया फेज 1। Okay, thank you, Sashikesh. ओके मैम। And the next part, second phase reactions. So, Shweta, Okay, ma'am. are you ready, Shweta? Yes, ma'am. Okay, please proceed. Good afternoon, all of you, faculties member and president, sir, and my faculty member and my batchmates. Let's start the phase 2 reaction. फेज 2 रिएक्शन या फिर फेज 2 मेटाबॉलिज्म। इसमें फेज 2 में जो भी रिएक्शन फेज 1 में हो रही थी, जो फेज 1 प्रोसीड नहीं कर पा रही थी, वो रिएक्शन फेज 2 में आती है। फेज 2 में ऑलमोस्ट सारे ड्रग्स जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं ताकि हमारे बॉडी से इजीली पास आउट हो सके।
और फेज 1 रिएक्शन को हम सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज बनते हैं, यानी कोई भी लिपोफिलिक ड्रग है तो उसे हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए हम कुछ न कुछ एजेंट की यूज करते हैं। इसमें मेनली कंजुगेशन रिएक्शन होती है, और कंजुगेशन विथ पोलर मोलैरिटी, कोई भी ड्रग्स होती है जो पोलैरिटी को अगर कंजुगेट कराते हैं ड्रग के साथ तो वो इंक्रीज करती है उसकी पोलैरिटी को, और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो टर्मिनेट करती है, क्योंकि ये लास्ट फेज होती है, ताकि जितने भी ड्रग्स हैं उसको हाइड्रोलाइज करके हमारे बॉडी से पास आउट करना होता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अगर किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी तो वो या तो डिसऑर्डर के फॉर्म में शो होगी या डिजीजेस के फॉर्म में शो होती है। और इसमें मैक्सिमम ड्रग्स जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इसके बाद एलिमिनेशन प्रोसेस होती है। और इसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ बन रहे होते हैं, ताकि किसी भी लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना मतलब कुछ ग्रुप ऐड करेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए इनको एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। और लेट्स इसमें बहुत टाइप के कंजुगेशन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि पहला रिएक्शन है ग्लूकोरोनिक एसिड कंजुगेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोरोनिडेशन रिएक्शन। और दूसरा है इसमें सल्फेट कंजुगेशन रिएक्शन, और तीसरा है अमोनिया एसिडुगेशन, और फोर्थ है एसिटाइलेशन, और फिफ्थ है मिथाइलेशन। वन बाय वन ये सारे रिएक्शन को हम देखते हैं कि ये कैसे कंजुगेट करते हैं ड्रग के साथ। कंजुगेशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन आता है ग्लूकोरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन। कंजुगेशन रिएक्शन में जितने भी ड्रग्स होते हैं वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड करते हैं, इसके बाद वो शो करते हैं उसके मेटाबॉलिज्म को। जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें एक्टिव स्टेज होता है यूरोडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड, जिसके साथ ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट होती है, बाइंड करती है, जिसमें यूडीपी जो है वो बाहर रिमूव आउट होते हैं और ड्रग उसके साथ बाइंड करते हैं। जैसे कि लास्ट में शो हो रही है कंजुगेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको ग्लूकोराइड कंजुगेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें बहुत टाइप के रिएक्शन होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं। टाइप ऑफ द कंपाउंड फॉर्मिंग द ग्लाइकोरोनिडेशन, इसमें जितने भी रिएक्शन होते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें अल्कोहल और फिनॉल जो है वो एस्टर टाइप का ग्लूकोरोनाइड फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड जो होती है उसके साथ बाइंड करते हैं पैरासीटामोल को। ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसमें OH प्रेजेंट है। ये रिएक्ट करने के बाद यूडीपी जो है वो बाहर होते हैं और यूडीपी वहां से मतलब रिमूव होते हैं और वहां पे ड्रग जाके बाइंड करते हैं। जैसा कि मतलब ग्रीन कलर के पेन से शो कर रखा है कि वो ईथर का फॉर्मेशन हो रही है, यानी ये पूरा जो ड्रग है वो कंजुगेट बना रही है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। पैरासीटामोल और ग्लूकोरोनिक दोनों कंबाइंड हो रहे हैं और उसके साथ ही ईथर बॉन्ड की फॉर्मेशन भी शो हो रही है। तो अल्कोहल और फिनॉल जो है वो फॉर्म करते हैं ईथर टाइप ऑफ ग्लूकोरोनाइड्स। इसमें दूसरा एग्जांपल है एरोमेटिक एंड सम एलिफेटिक कार्बोनिलिक एसिड फॉर्म एस्टर टाइप ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। यानी जब एरोमेटिक रिंग होंगे या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये फॉर्म करते हैं एस्टर टाइप ऑफ ग्लूकोरोनाइड्स। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ग्लूकोरोनाइक एसिड जो है वो बाइंड कर रही है सिलिसैलिक एसिड जो एक साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब इसके साथ कंजुगेशन हो रही है तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट सिलिसैलिक एसिड। प्रोडक्ट में जो ग्रीन पेन से शो हो रही है एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जैसा कि एरोमेटिक एंड सम एलिफेटिक कार्बोनिलिक एसिड फॉर्म कर रही है एस्टर टाइप ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। ये था फर्स्ट फेज सेकेंड के पहला रिएक्शन ग्लूकोरोनिक एसिड का। अब उसके बाद आती है सेकेंड रिएक्शन है इसमें सल्फेट कंजुगेशन। अब ड्रग जो है वो सल्फेट के साथ कैसे बाइंड करती है और कैसे कंजुगेशन फॉर्म करती है। और सल्फर का जो एक्टिव स्टेज होती है वो 3' फॉस्फो एडिनोसिन 5' फॉस्फो सल्फेट होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAPS कहते हैं। जैसे स्ट्रक्चर PAPS का
शो हो रही है, काफी ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल है इसमें। एडिनोसिन ग्रुप टॉप पे दिखाया जा रहा है कि एडिनोसिन इसके साथ बाइंड किया हुआ है, और इसके बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस हैं। हाँ, इसमें सिंथेसाइज ऑफ एक्टिव कोएंजाइम पीएपीएस, यानी एक्टिव स्टेज में पीएपीएस है, यानी फॉस्फोएडेनिन फॉस्फोसल्फेट। इसमें पहला स्टेप देख रहे हैं एटीपी, यानी जो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है वो बाइंड करती है SO4 2- के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपी सल्फेज, जिसमें कि सल्फर की एडिशन हो रही है। एपीएस प्लस पीपीआई फॉर्म हो रही है। एपीएस क्या है? एमिनो पर सल्फेट है, और प्लस पीपीआई जो है इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं कि जो एपीएस जो है वो बना है, फर्दर वो रिएक्ट कर रहा है एटीपी से। इसमें एंजाइम प्रेजेंट है एटीपी ट्रांसफरेज, जो पीएपीएस को फॉर्म करती है, प्लस एडीपी बाहर निकल जाती है, मतलब एक प्रोडक्ट के रूप में बनती है। यानी एडीपी जो है वो है एडेनिन डाइफॉस्फेट, और पीएपीएस जो है वो फास्फो एडेनिन फॉस्फोसल्फेट है। और फर्दर जो स्टेप 3 में देख रहे हैं, उसमें पीएपीएस जो है वो रिएक्ट करती है RX H से, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सल्फोट्रांसफरेज, जिसके कारण वो कंजुगेट बना रही है सल्फेट के साथ। RXSO3 प्लस PAP बाहर आते हैं, जो है फॉस्फोएडेनिन फॉस्फेट। और यहाँ पे जो X शो हो रही है वो X या तो ऑक्सीजन ग्रुप हो सकती है या NH ग्रुप भी हो सकते हैं। इसके बाद इसमें थर्ड बॉन्ड रिएक्शन हम शो कर रहे हैं, जो है एमिनो एसिड रिएक्शन कंजुगेशन, जिसमें कि कोई भी ड्रग्स है वो एमिनो एसिड के साथ बाइंड करके हम वो प्रोडक्ट शो करें कि कैसे वो एमिनो एसिड के साथ कंजुगेट कर रहे हैं। जिसमें एक उसका एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें एक है एडी आइसोनियोसाइड्स, जो एक टाइप का एंटी ट्यूबरक्लोराइड ड्रग है, उसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये आइसोनिकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। आइसोनिकोटिनिक बनने के बाद इसमें एक OH ग्रुप ऐड हो रही है, मतलब हाइड्रोलाइसिस किए तो OH ग्रुप अटैच हो रही है। इसके बाद फर्दर जो स्ट्रक्चर शो हो रही है वो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन अभी इस ड्रग के साथ बाइंड होगी निकोटिनिक एसिड के साथ। जब ग्लाइसिन बाइंड होती है, ग्लाइसिन एक एमाइनो एसिड है जो कंजुगेशन फॉर्म करती है। इसके बाद जो प्रोडक्ट शो हो रही है वहाँ OH की जगह हम पूरा ग्लाइसिन जो है वो कंजुगेट कर रही है ड्रग के साथ। तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन कंजुगेशन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको एमाइनो एसिड कंजुगेशन भी कहते हैं। और इसमें फोर्थ रिएक्शन है एसिटाइलेशन कंजुगेशन रिएक्शन, यानी इसमें एसिटाइल ग्रुप का जो है एडिशन कंजुगेट बनाएंगे। जो भी ड्रग है वो एसिटाइलेशन होगी, यानी उस ड्रग पे एसिटाइल ग्रुप का कंजुगेशन बनेगा, यानी वो कंजुगेशन फॉर्म करेगी। इसमें इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रूट होता है ऑफ ड्रग का, जो कंटेन करती है प्राइमरी अमाइनो एसिड को और सल्फोनाइड्स को और हाइड्रोजिन्स को। और इसमें जितने भी ये मतलब कंजुगेशन बनते हैं वो कन्वर्ट होते देर एमाइड डेरिवेटिव में, यानी जो COCH3 है वो एसाइल ग्रुप होती है, और जो है अगर उसमें N ग्रुप लगा हुआ है तो वो एमाइड के फॉर्म में शो करेगी रिएक्शन। जैसे हम एसाइलेशन को देख रहे हैं, तो एसाइलेशन जो है वो कैटालाइज होती है एंजाइम के प्रेजेंस में, जिस एंजाइम का नाम है N-एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जैसे हम रिएक्शन देखते हैं आगे। देख रहे हैं, इसके बाद आती है कि इसका रिएक्शन एसिटाइलेशन होता कैसे है। एक ड्रग है जो आइसोनियोसाइड है, इस ड्रग के साथ जब हम N-एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करते हैं, और इस ग्रुप के ऊपर, इस ड्रग के ऊपर जो NH-NH2 ग्रुप है वो एसिटाइलेशन फॉर्म करती है, यानी एसिटाइलेशन के साथ कंजुगेट कर रही है। जैसा कि हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि इस आइसोनियोसाइड जो है कॉम्प्लेक्स बना रही है एसिटाइल ग्रुप के साथ। जैसे NH 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 COCH3 है,
जो NHCO ग्रुप है ये एक तरह का एमाइड डेरिवेटिव है, और COCH3 जो है एक एसिटाइल ग्रुप है। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि ये आयोनियोजाइड ड्रग जो है वो एसिटाइल ग्रुप को अपने साथ कंजुगेट कर रही है, बाइंड कर रही है। और इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जिसमें एक है डेप्सोन, एक ड्रग है जिसके साथ जब एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो फिर वो भी एसिटाइल ग्रुप को अपने साथ अटैच करती है, यानी कंजुगेट करती है। जो यहाँ सबसे टॉप मोस्ट पे जो डेप्सोन का NH2 ग्रुप है, वो एक H रिमूव होके COCH3 ग्रुप अटैच हो रही है, यानी डेक्स्ट्रो कंजुगेट कर रही है एसिटाइलेशन के साथ। इसके बाद इसमें आता है लिस्ट बट लास्ट है मिथाइलेशन कंजुगेशन रिएक्शन, यानी इसमें मिथाइल ग्रुप को एडिशन होती है ड्रग के साथ। इसमें 3 टाइप की रिएक्शन होती है। पहले तो होती है O मिथाइलेशन, N मिथाइलेशन और S मिथाइलेशन। O मिथाइलेशन जो होती है वो कार्बाकोल O मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की ही प्रेजेंस में होगी, और ये ज्यादातर केटकोलामाइन के ही प्रेजेंस में होती है। जैसे कि लास्ट नीचे ड्रग देख रहे हैं, O मिथाइलेशन में केटकोलामाइन का स्ट्रक्चर है जिसको 3,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसमें 2 ग्रुप OH की है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम केटाकोल O मिथाइल ट्रांसफरेज यानी CO शॉर्ट फॉर्म में COMIM कहते हैं, इनके प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होती है तो ड्रग जो है वो मिथाइल ग्रुप को कंजुगेट करती है, अपने साथ कंजुगेशन का फॉर्म करती है। जैसे कि देख सकते हैं कि H हट करके CH3 ग्रुप अटैच हो रही है, यानी मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो रही है या फिर कंजुगेशन हो रही है। जैसे मिथाइलेटेड केटकोलामाइन का फॉर्मेशन हो रही है। इसमें देखते हैं, इसके बाद ये O मिथाइलेशन था, अब देखते हैं N मिथाइलेशन कैसे होती है। N मिथाइलेशन में क्या है, नाइट्रोजन एटम पे शो करती है CH3 ग्रुप, यानी मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है या फिर वो कंजुगेट बना रही है, जिसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल है, लेकिन इसमें एक मोस्ट जो सभी लोग जानते हैं एग्जांपल, जैसे नॉन एपिनेफ्रिन है। नॉन एपिनेफ्रिन में जो NH2 ग्रुप है वहां पे एक H हट करके CH3 ग्रुप का अटैचमेंट होती है, यानी कंजुगेट करती है। इसमें नॉन एपिनेफ्रिन जो है कन्वर्ट होती है एपिनेफ्रिन में, जिसके एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, जो एंजाइम है N मिथाइल ट्रांसफरेज, यानी N मिथाइलेशन होती है। और एक और इसमें हम प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है फिनाइल इथेनोमाइन। इसके प्रेजेंस में जो है ये डायरेक्ट नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो इपिनेफ्रिन में बदल जाते हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं लास्ट रिएक्शन है एस मिथाइलेशन, यानी सल्फर ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप का अटैच होना, यानी ये कंजुगेट मिथाइल के साथ हो रही है। यानी ये मिथाइलेशन जो होती है एक एंजाइम के प्रेजेंस में होती है जिसको एस मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं। और जिसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं थायोयूरासिल एक ड्रग्स है, उसके साथ जब हम रिएक्ट करा रहे हैं एस मिथाइल ट्रांसफरेज को, देन वहाँ एस के साथ जो H अटैच थी वो H हट करके CH3 ग्रुप लग रही है, यानी इसको एस मिथाइल थायोयूरासिल कहते हैं, क्योंकि इसमें थायोयूरासिल में एक S के पास जो H था वो बॉन्ड रिमूव हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस मिथाइल ट्रांसफरेज, देन वो कंजुगेट फॉर्म कर रही है S के साथ CH3, जिसके कारण इसको बोलते हैं एस मिथाइल थायोयूरासिल कंजुगेशन। मैम ये phase 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। Okay, sir. Well done, Shweta. Thank you so much. And all of you did very well in spite of having that much network issue, but you tried well, and it went all well. So I will request Director Sir to please say a few words to students. Dear students, it was a good presentation. At the same time, I am happy to give this information that one distinguished alumni, Mr. Jatan Sharma,
one distinguished alumni of Dr. Kane Myper is present today with us. He has been present throughout the webinar. And now I would request Mr. Jatan to please join us and say a few words, your remarks and your observation on this webinar. Mr. Hello. Jatan? Yeah. Thank you so much, Director sir. Hello. Is I audible to all of you? Yes. Please confirm one. Ji sir. Hello everyone, and regards to all the faculty members and the director sir. I'm very happy to be here. Throughout the presentation, I was seeing the slides. They are very thorough, and the juniors did the very great job. Actually, what I want to tell you guys that this is the new way of learning. Actually, we have to adopt this. I am from 72 days. I am at my home. I'm doing work from home, and I am connecting with all of my colleagues, even from my managers, with this way only. And future will be relying on this only, and we have to learn to adopt this manner. And I say kudos to all of you guys that you are adopting in very well manner. Even I will be saying this, director sir and all the faculty members, Pranjal sir, Suryakant sir, they are giving you the great platform to learn the things in the manner. A big round of applause from my side to all the presenters, the juniors of mine. You did a very great job, and you have presented in the well manner, and there is a scope of improvement in all the times. Nobody is perfect. You have to throw it. And my request to all of the attendees, all the juniors, the classmates of the presenters, you should take the follow back from these presentations. You have to learn this in the manner. This is also kind of class. Take it very seriously, and I will be saying this should be very communicating. Once you go through this, then you should be communicating in the groups. You all have created the WhatsApp group. We share the unnecessary information. You should share the necessity of the information. Like today, the topic of biotransformation. You should ask the question from your colleagues. You should ask the question to the faculty members. They will be giving you, they will be happy to give you the answer of these. As we are not attending the college, utilize your time in the willful manner. Do courses. There are many platforms available on the Google Play stores like LinkedIn Learning. Upgrade your skills, and thank you. That's all from my side. Thank you very much, Jatan, for your precious comments. I think all the students, I hope that all the students will definitely pay attention what you have said to them, and they will take advantage of it. At the same time, all the students, if you have any query or any doubt, any question regarding this topic, biotransformation, you can put your question on the WhatsApp group. You can send your question to Alka madam, and you will be suitably answered. So thank you very much, all the attendees of the webinar, and thank you very much. Okay.